While hundreds of Afghans are likely to come to India to seek asylum as the Taliban take control of Afghanistan again, there are already many Afghani refugees trying to rebuild their lives in various parts of India. I am here at one of them in Lajpat Nagar in the capital, New Delhi. Streets in both Lajpat Nagar as well as adjoining Bhogal area bear telltale signs of a sizable Afghani community. There are numerous hair salons or beauty parlors, travel agents, real estate brokers, pharmacies and restaurants catering almost exclusively to the Afghani community. While some of the Afghans living here came decades ago, the flow of refugees has continued over the years as the war progressed. Most of them are worried over the return of a Taliban government in Kabul. 17-year-old Mohammad Shafiq is one of the later arrivals. Shafiq came to India with his parents 4 years ago. As Shafiq's parents were too poor to afford to send him to school, he began working at this restaurant in Lajpat Nagar, where he makes about 8,000 rupees every month. Shafiq is worried about the developments in Afghanistan, saying his own maternal uncle, who used to work for Americans, has been missing since nearly a week after some Taliban militants came to their office and captured 35 workers. He says he has not been able to get any information about him since. मेरा लास्ट बात हो गया था, परसों हो गया था. अभी मेरा मामू है 25 साल, अभी भी वो तालिबान का पास पड़ा है. अभी वो जो ऑफिस में काम करता था, वो उसको ऑफिस को जो किसी ने अमेरिका लोगों का साथ काम करता है, जॉब करता है, उसको सब ऑफिस लोगों को पकड़ लिया. मेरे मामू को 35 आदमी उसका साथ पकड़ लिया और एक रूम में बंद कर दिया. मेरे मामू का पास 2 फ़ोन था, 2 फ़ोन, सबका फ़ोन छीन लिया. फिर मेरा मामू क्या किया, एक फ़ोन अपना छुपा रख दिया उसी ऑफिस में और एक फ़ोन तालिबान लोगों को दे दिया. फिर मेरा मामू मम्मी को कॉल कर रहा था जो अफ़गानिस्तान में, दीदी को मेरा, वो फ़ोन नहीं हो रहा था. फिर मेरा मम्मी को कॉल किया, बोला बहन मेरे को तालिबान लोगों ने पकड़ लिया होगा, मेरे को मार डालेगा. अभी तक मेरा मामू इसका कुछ मालूम नहीं है क्या हुआ, ज़िंदा है, मरा है, क्या हुआ. फिर हमने जो परसों कॉल किया, बात किया था, 3 घंटा बाद मेरे मामू को फ़ोन किया, फ़ोन अभी तक नहीं होता रहा है. वो जो आदमी अमेरिका लोगों का साथ काम करता है उसको बोलता है कुफर हो गया तुम लोगों, जिंदा मार देता है. Just adjacent to Lajpat Nagar is Bhogal in Jangpura, which is also home to many Afghan refugees. The two localities bear similar signs of hosting a vibrant community. At Bhogal, we run into Rahman Noori, who has been living in New Delhi as a refugee for the past 6 years. Noori says he used to work with the Americans in Kabul, but he was forced to flee for his life after the Taliban began threatening him. क्योंकि मैं काम कर रहा था, ये अमेरिकन गवर्नमेंट से उधर एक ऑफिस था, मैं उसी के साथ काम कर रहा था, तो धमकियाँ शुरू हो गया तालिबान से कि तुम मैं इसके साथ काम कर रहे हो, ये वो. इसी की वजह से, क्योंकि मेरा 2 बच्चे हैं और वो 2 बेटियाँ हैं, इसीलिए मैं डर के मारे इधर आ गया. अभी 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ. While Noori's parents and siblings have continued to stay in Kabul, Noori lives in India with his wife and 2 daughters. But while coming to India may have saved him from the Taliban, life in India has been full of struggles. मैं जो काम मिलता है मैं वो करता हूँ. कभी रोटी के दुकान पे, कभी पेंटिंग कर रहा हूँ. अफ़गानिस्तान में मैं सेल्स मैनेजर था, अभी इधर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ घरों में. कभी वो भी मिलता है, कभी नहीं मिलता है. This 28-year-old woman, who does not want her identity to be revealed, came to India about 15 years ago with her family, escaping the brutality of the Taliban. She says that neither the men nor women were safe in Afghanistan, and she fears that with Taliban back in control, the same troubles and violence will come back. वहाँ पे बम ब्लास्ट ज़्यादा होता था, लेडीज़ लोग को ले जाते थे, रेप केस ज़्यादा होता था, बच्चे लोग स्कूल से अगवा करते थे, ये सब ज़्यादा होता था. इसलिए हम उन हालातों से बच के हम यहाँ पे आए, क्योंकि हम थोड़ा अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे कि तब हम अपने अफ़गानिस्तान का फ्यूचर बनाएं. बट अभी ज़्यादा ओवर हो गया है ना, वहाँ पे सब लोग
अभी सब लोग को वापस बुर्का करना पड़ेगा। अब ये लोगों को नमाज पढ़ना होगा, इतना क्या बोलते दाढ़ी रखना पड़ेगा, ये सब। उससे ज़्यादा तो सब बच्चे को मार रहे हैं, बूढ़े लोगों को मार रहे हैं, सब लोग बेघर हो गए हैं, किसी का भी घर ही नहीं है कि वहाँ कहाँ पे सोए। सब लोग सड़क पे सो रहे हैं, बच्चे लोग सड़क पे सो रहे हैं। While almost all Afghans may fear the Taliban, it is the women and girls that have ended up paying the heaviest price. Before they were ousted in 2001, the Taliban had banned Afghan girls from going to school and imposed severe curbs on women from their attire to the civil rights. The women fear the same practices like closing girls' school or kidnapping unmarried girls to use as sex slaves of the Taliban would recommence. अभी ज़्यादातर तो मम्मी लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चों को वो लोग अपने साथ लेके जाते हैं। मान लो जिसका शादी लड़की छोटे छोटे होते हैं उनको ले जाते हैं, जिनका शादी हुआ है औरतों को नहीं ले जाते। जो लेडीज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, जो गर्ल्स हैं ना उनके लिए, क्योंकि उनको अगवा करके वो लोग ले जाते हैं, क्योंकि उनको बीवी चाहिए। और वो सब लोग ये अभी पढ़ाई कोई भी नहीं कर सकता है। मान लो सब लोग बुरके में चलो, पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, औरतें घर से निकल नहीं सकते। अपने जैसे किसी का वो होता है ना कि मान लो कि मैं कहीं कुछ बनूं, बट अफ़गानिस्तान में लेडी लोग के लिए ऐसा नहीं है। घर में बैठो, बुरका पहनो, नमाज पढ़ो। The Afghan woman says that now that the Taliban is back in control, it will undo all the hard work and progress made by Afghanistan since 2001 and push the country back to the 1990s. 20 साल पहले, जो 20 साल पहले था, वापस 20 साल पहले चला जाएगा। इतना हम लोगों मतलब अफ़गानी लोग ने मेहनत किया, कितना वो किया कि अपना मतलब ये जो मुल्क है थोड़ा आगे जाए, बट अभी वापस 20 years बैक जाएगा वो। She says that the people still living in Afghanistan have been shocked, adding that her own family members in Kabul are traumatized by the return of the Taliban. बहुत ज़्यादा, कोई तो ना सदमे में ऐसे हो गए हैं कि बात नहीं कर सकते। बहुत रोते हैं कि हम लोग फंस गए यहाँ पे। हम क्या करें, अभी हमारा फैमिली सब लोग वहाँ पे, सब लोग लेडीज़ के लिए ज़्यादा डर रहे कि घर से आके उठा के ले जाते हैं। इसलिए सब लोग उसी में डर रहे हैं कि मतलब ये लोग अब क्या होगा, वो तो अल्लाह को पता है ना। The Afghan refugees feel that coming to India may have saved their lives, but they have been struggling to eke out a living here. They say they have not had any support from the Indian government or the multilateral bodies like the United Nations High Commissioner for Refugees. They say that besides issuing them a refugee card, the UNHCR has failed to help them. अभी 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। ये जो UNHCR ऑफिस है इधर रिफ्यूजी के लिए, हम उधर रजिस्टर हुआ है, पर ये भी हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। हम भूखा मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस 1 साल में स्तंभ लगाता है, बोलता है कि आप जाओ, 1 साल बाद आ जाओ। ये नहीं बोलता है कि यार हम किस मुसीबत में यहाँ पे है, इधर बहुत परेशानी है, हमको जॉब नहीं मिलता है इधर, कहाँ से लाए हम, कहाँ से क्या खाए हम लोग जो पहले हम लोग का काम था, जो किराया का घर का किराया था, खर्चा सब कुछ हम लोग का वास्ता था। जो लोग यहाँ आते थे हम लोग का काम उसमें चल रही थी। अभी हम लोग का कोई फ्यूचर यहाँ नहीं है। अभी शायद 1 महीने में 2 महीने हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या क्यों काम नहीं है। पहले 2 साल हो गया कोरोना खतरा, हम लोग के साथ हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी आप लोग का ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग का आवाज़ है UNHCR ऑफिस जो है ना, यहाँ रिफ्यूजी जो हम लोग हैं वहाँ से पहुँचाने के बोले, हम लोगों का फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे, हम लोग का दूसरा जगह में जो बेचना है बात कर सके। दूसरा जगह में हम लोग यहाँ तक कब तक रहेंगे, हम लोग का बच्चों का फ्यूचर के प्रॉब्लम है, स्कूल का खर्चा है, सब कुछ प्रॉब्लम हम लोग का बहुत ज़्यादा हो गया है दिन ब दिन से। The developments of the last few days are bound to cast a pall of gloom enveloping the small Afghani community in New Delhi, as not only are they worried about their own future here,
but also about the safety of their loved ones back home.